Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series, and we have been like in the past videos we have been looking at a lot of calculative DI sets from various viewpoints, various angles. In this particular session onwards, we'll be starting with logical DI, and today's session will be based on rankings and rating. So this set is actually derived from the very basic and core ideas of Kakuro and Futoshiki, right? A very important puzzles for cat. I hope you have been doing that. I've been telling you in all the classes. So let's start with the set for today, right? And before you actually begin, if you're a CAT 25 aspirant and you're looking for a comprehensive CAT program, so we have recently started with our elite batch, right? Currently priced at a very reasonable amount. And if you want a comprehensive program with all the key features of a good batch, so this is actually the batch for you, right? The whole MBA Pathshala team would be actually teaching in this particular batch. So you'll be getting the best of all the mentors from this, right? And if you want a dedicated batch for LRDI, so we also have an option currently. So if you have been following me and you want to study LRDI comprehensive with me, a complete batch with all the topic tests and all the practice sheets and live tests. So this is a batch. This batch again start from the 12th of June. So we have like currently been doing linear arrangements till now. And before we actually move on to the next topic, I wanted to actually tell you, right? This batch is ongoing. So अगर तुम इसको बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, अगेन इस बैच के लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. Also, if you are a OMITS guy, right? If you want to prepare for OMITS, the exams including NMAT, SNAP, CMAT, and Maharashtra CT and CUT. So we also have an option, right? इस बैच के भी डिटेल्स तुम्हें लिंक्स में मिल जाएंगे. एंड इफ यू वांट अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, सो उसके भी डिटेल्स तुम्हें स्क्रीन पे करंटली दिख रहे हो. राइट, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेट. सो टुडेज सेट इज लॉजिकल डीआई रैंकिंग्स एंड रेटिंग्स बेस्ड. So first of all, as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding this. Let's try to see what is actually given in this particular scenario. So what do we have? Six friends, Saral, Anurag, Shashank, Nitish, Manu and Weber, six people. They went for a picnic. They played four games: pool, cricket, table tennis and poker during the picnic. At the end, Saral ranked. So Saral is basically one of the six guys. ठीक है, ये ध्यान रखना. So at the end, Saral ranked all the remaining five, that is Anurag, Shashank, Nitish, Manu and Weber, in all the four games. He ranked them on a scale of 1 to 5 in each game, and each friend got a distinct rank in any game. However, some of them might get the same rank in different games. तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं how to actually draw structure for it. So let's do this. क्या अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझ में आई कि अपने पास पांच लोगों को रेटिंग्स देनी है ना, बिकॉज सरल इज गिविंग द रेटिंग. सो पांच लोग हैं एंड हमारे पास क्या है, चार स्पोर्ट्स है. सो आई एक्चुअली मेक अ 5 by 4 table. I'll write the names along this axis and the names of the games along this axis. तो हमारे पास names कौन से हो गए, सरल, then we have Anurag, then we have Shashank, then Nitish, not Saral by the way, sorry, my bad. Saral was actually giving the ratings, ठीक है. So Anurag, Shashank, Nitish we can write on top. Nitish, Anurag, Shashank, Manu and Vaibhav. ठीक है, these are the names of the five people and इनको ratings मिल रही है four sports में, that is pool, cricket, then TT and poker finally. Perfect. Now यहाँ पे अगली लाइन में हमारे पास क्या क्या कंडीशन दिया हुआ था. ही रैंक देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. सो रेंज ऑफ रेटिंग्स इज 1 to 5, 5 people in each game, and each friend got a distinct rank in any game. तो फॉर एग्जाम्पल पूल, एज एन एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो पूल में पांच लोग हैं ना, तो उसने ये पूल में पांचों लोग को पांच डिफरेंट रेटिंग दी होगी. तो इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 2 3 4 5 आने वाला है. सिमिलरली क्रिकेट में भी सबको अलग अलग रेटिंग मिली होगी, पांच फ्रेंड्स है, सो 1 2 3 4 5 आया होगा इन सब पॉसिबल ऑर्डर. द सेम वुड बी ट्रू फॉर टीटी एज वेल, सेम इज ट्रू फॉर पोकर एज वेल. तो सबसे पहली चीज जो मेरे को समझनी है कि कॉलम में हमारा रेपिटेशन नहीं हो सकता, राइट? इट इज क्लियरली सेड.
नेक्स्ट, हाउएवर वाला जो पार्ट था उससे वी कैन डिड्यूस वन थिंग, राइट? इसने क्या बोला था? हाउएवर सम ऑफ देम माइट गेट द सेम रैंक इन डिफरेंट गेम। तो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल नीतीश को 4 स्पोर्ट्स में से 2 स्पोर्ट में सेम रैंक मिले, 2 से ज्यादा स्पोर्ट्स में भी सेम रैंक मिल सकता है, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो रो वाइज हमारा रेपिटेशन की एक्चुअली में पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, राइट? सो दिस इज अ वेरी की पॉइंट टू अंडरस्टैंड इस टाइप के सेट में, जहाँ पे आप ग्रिड बना के उसमें नंबर्स प्लग इन कर रहे होते हो। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर कंडीशन जहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि रो में रेपिटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, एंड सिमिलरली कॉलम में रेपिटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, राइट? सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। कॉलम में यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बट रो में हमारा रेपिटेशन हो सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद क्या दिया हुआ है? आफ्टर द रैंकिंग वाज डन इट वाज फाउंड दैट द सम ऑफ द रैंकिंग्स ऑफ अनुराग, शशांक, नीतीश, मनु एंड वैभव वर इन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, एक काम कर लेते हैं यार, ज्यादा बेटर पड़ेगा कि ये जो अपने पास नाम है ना ना, अनुराग शशांक नीतीश मनु एंड वैभव, इसको हम उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो आई जस्ट टेक अ मोमेंट एंड राइट द नेम्स इन दैट ऑर्डर इटसेल्फ, बिकॉज इनके जो टोटल पॉइंट्स है उसको भी मेरे को एपी में बनाना है इन दैट ऑर्डर। सो इट इज बेटर वी राइट दैट इन द ऑर्डर इटसेल्फ। तो अनुराग, देन शशांक, देन नीतीश, मनु एंड फाइनली वैभव। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां से हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो, इसने बोला अनुराग का टोटल सम ऑफ रैंक, शशांक, नीतीश, मनु एंड वैभव के जो टोटल सम ऑफ रैंक्स है वो खुद हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। नाउ व्हाट वुड बी दोज नंबर्स जो हमारे ये टोटल के वैल्यूज होंगे जो कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेंगे? इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं ऐसे देखता हूं कि इस पूरे ग्रिड में हमारे कौन से नंबर्स यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं स्पोर्ट्स के या गेम्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हर एक कॉलम में 1 2 3 4 5 आएगा। तो इस कॉलम में 1 2 3 4 5, क्रिकेट में भी 1 2 3 4 5, टीटी में भी 1 2 3 4 5, पोकर में भी 1 2 3 4 5। तो इवेंचुअली मैं बोल सकता हूँ इस पूरे ग्रिड के अंदर मेरा 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का सम 15 होता है। तो 15 15 15 15 चारों कॉलम्स का एडिशन मेरा कितना है? 15 × 4 60। तो मेरे पांचों रोज का भी एडिशन अल्टीमेटली मेरा 60 बनना चाहिए, राइट? ये पांचों रोज का जो मेरा एडिशन है वो भी मेरा 60 बनना चाहिए, बिकॉज वही तो सेम उसी ग्रिड के बारे में बता रहे। चारों कॉलम्स ऐड करो या फिर पांचों रोज ऐड करो, इवेंचुअली द सेम थिंग। तो चारों कॉलम्स ऐड करके मेरा 60 आ रहा है, तो पांचों मेरे रोज ऐड करके भी 60 आना चाहिए। नाउ रोज में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कंडीशन है वो ये बोलता है कि अनुराग, शशांक, नीतीश, मनु एंड वैभव के जो हमारे सम ऑफ ऑल रैंक्स वगैरह आएंगे वो हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते हुए दिखेंगे। सो नोटिस करो, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, इन टोटल 5 वैल्यूज का जो मेरा एडिशन है 60 है। एंड द बेस्ट थिंग कि ये हमारे पांचों नंबर जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब भी 5 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो मिडिल वाला वैल्यू होगा दैट इनटू अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स कर दूं तो मेरा हमेशा सम आएगा। दिस इज सिंपल शॉर्टकट वी कैन अप्लाई। ये कहां से आ रहा है? एवरेज के बेसिक से। 5 नंबर है मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनका मिडिल वैल्यू ही एवरेज होता है। नाउ एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं तो सम आता है ना, तो वही आइडिया, मिडिल नंबर जब एवरेज होगा तो दिस नंबर इंटू 5 करके मेरा सम आ रहा होगा। सो मिडिल नंबर हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारा? 12। सो नीतीश का सम ऑफ ऑल रैंक्स डेफिनेटली हैज टू बी 12। नाउ हाउ डू आई एडजस्ट दीज वैल्यूज? अब इनको अगर नोटिस करो तो यार ये 12 है, ठीक है? तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर बनना है फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना है तो या तो इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमारा 1 चलेगा, या तो हमारा 2 चलेगा, या तो हमारा 3 चलेगा। सो विल हैव डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज। मान लो जैसे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 के कॉमन डिफरेंस पे है, ठीक है? अगर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 के कॉमन डिफरेंस पे है सपोज, तो ये 12 है तो ये हमारा 11 रहेगा, ये हमारा 10 रहेगा, ये 13 रहेगा, या फिर 14 रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये 12 है और दो दो का कॉमन डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 14 और यहाँ पे 16, और यहाँ पे हमारा 10 और यहाँ पे हमारा 8 है। या फिर तीन तीन का कॉमन डिफरेंस है, तो फॉर एग्जाम्पल ये 12 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 18 हो सकता है, फिर ये 9 हो सकता है और ये हमारा 6 हो सकता है। मेनी पॉसिबिलिटीज आर डेफिनेटली देयर, बट हाँ ऐसा ही कुछ हमारा रहेगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमारा नीतीश का सम ऑफ ऑल रैंक्स डेफिनेटली हैज टू बी 12, राइट? आई होप दिस इज क्लियर।
अच्छा, वी ऑल्सो हैव सम कंडीशन, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। होपफुली यहां से भी कुछ हमारा इंफॉर्मेशन इनके पॉसिबिलिटीज के अराउंड आ जाना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये दिया होता, वैभव डिडंट गेट 5 इन एनी गेम, तो वैभव का कभी भी किसी भी गेम में 5 नहीं है। ओके, तो इस रो में कभी भी हमारी कोई वैल्यू 5 नहीं है, तो मैक्सिमम अगर मैं नोटिस करूं, मैक्सिमम चारों जगह 4 जा सकता है ना। अ पर्सन कैन गेट द सेम रैंक्स इन डिफरेंट गेम, यो अलाउड था। तो बिकॉज वैभव का कभी भी 5 नहीं आया है, तो मैक्सिमम ही कैन गेट इन ऑल द 4 गेम्स इज 4 4 4 4, दैट इज 16। तो एक्चुअली में फिर ये सब हमारी पॉसिबिलिटीज या इसके बाद नहीं बन सकता, 18 नहीं आ सकता कभी भी वैभव का, राइट। तो यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अभी लग रही है, ये 12 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो बाकी चार नंबर है, जैसे क्या क्या हो सकता है, एक तो ऑर्डर में हो सकता है 10 11 12 13 14 हो सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। या फिर इसको 12 रखते हुए दो का कॉमन डिफरेंस, दैट इज 14 16 10 और 8 बन सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है उनके सम ऑफ रैंक्स की। सो ये वैभव वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, दिस हैड अ गुड ब्रेक थ्रू, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू दिस। अच्छा, इसमें और भी पार्ट दिया था, सो वैभव डिड गेट 5 इन एनी गेम, फाइन, एंड अनुराग डिड गेट 2 इन एनी गेम, तो अनुराग को कभी भी किसी भी गेम में 2 नहीं मिला है। 1 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आया हुआ है। क्लियर, आई होप दिस इज फाइन। नेक्स्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, ऑल फोर रैंकिंग्स ऑफ मनु कंसिस्टेड ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, तो मनु के जो हमारे चार ये रैंक्स हैं, ये सिर्फ दो नंबर से कंप्राइज है, तो इसमें हमारे पास दो ही नंबर आएंगे, ए एंड बी ना। उसमें भी जैसे अब दो नंबर से चार नंबर बनना है, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक नंबर 3 बार आया हो और एक नंबर एक बार आया हो, या फिर दोनों नंबर हमारे पास दो दो बार आए हो। डेफिनेटली हमारे पास पॉसिबिलिटी है, राइट, दिस इज फाइन, राइट। तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, 13 एंड 14 यहाँ पे हो सकता है, बट इसमें दो ही नंबर यूज होने वाले हैं और वो दोनों से चार नंबर लाइक ओवरऑल बन रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक नंबर 3 बार आओ और एक नंबर एक बार, राइट। इट कुड हैव बीन अ ट्रिपल बी एन ए ऑल्सो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एक नंबर 3 बार, दूसरा नंबर एक बार, या फिर दोनों नंबर हमारे दो दो बार, ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज है। नाइस। थर्ड पॉइंट, शशांक गॉट रैंक 1 इन पोकर, तो शशांक का पोकर में हमारा क्या है, रैंक 1। एंड नीतीश गॉट रैंक 1 इन क्रिकेट, तो नीतीश का क्रिकेट में क्या है हमारा, रैंक 1। नाइस। ना हाउ डू एक्चुअली स्टार्ट विद दिस, तो अब सबसे पहले तो मुझे ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना, कि ये टोटल हमारे क्या है। सो वहीं से शुरुआत करते हैं इस पूरे सेट की। सबसे पहले लेट्स थिंक, लेट्स ट्राई आउट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मान लो मैं बोलता हूँ कि ये पांचों लोग का हमारा जो इंडिविजुअल सम ऑफ रैंक्स है वो ये है 10 11 12 13 एंड 14, राइट। 10 11 12 13 एंड 14 हमारे पास सपोज है ना। इसमें 10 11 12 13 एंड 14 अगर हमारे पास है, तो फिर हम किस तरीके से रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा कंडीशन मेरा इसके बाद एक्चुअली में देखो दो जगह है, एक तो मनु में था कि दो ही नंबर यूज होने हैं, और वैभव में है कि 5 यूज नहीं होना है, और अनुराग में है कि 2 यूज नहीं होना है। तो इनसे पहले शुरुआत करेंगे एंड बाकी लोगों को फिर देखेंगे। जैसे मनु में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोटिस करूं, राइट, तो मनु में हमारे पास ये वाला केस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरा सम ऑफ रैंक्स 13 बनना है, और अगर मैं बोलता हूं कि दो नंबर है और दोनों को मैंने दो दो बार यूज किया है, तो सम ऑफ रैंक्स अगर नोटिस करो तो a प्लस बी बनेगा ना। सो इवेंचुअली गेट 2a प्लस 2b, बट 2a प्लस 2b इज बेसिकली एन इवन नंबर, 2 का मल्टीपल है ना। सो इट कैन नेवर बी 13, क्योंकि 2a प्लस बी इक्वल टू 13 डालोगे तो a प्लस बी हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा ना, 13/2 6.5। दैट इज नॉट पॉसिबल, रैंक है ये, होल नंबर हमारे पास वैल्यूज होने चाहिए। तो जब हम ये पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल ए बी वाली ही हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी बन के आएगी, राइट, ट्रिपल ए बी। अब अगर मैं इसमें नोटिस करूं ट्रिपल ए बी है, तो 3a प्लस बी वुड इवेंचुअली बी इक्वल टू 13। तो यहां से क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, जरा उसके बारे में सोचते हैं। तो 3a प्लस बी अगर हमारा 13 है, फॉर एग्जाम्पल कैन ए बी इक्वल टू 1, अगर ये 1 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू 10 होनी पड़ेगी, नॉट पॉसिबल। अगर ए हमारा 2 हुआ 6 हो जाएगा, और ये बी 7 होना पड़ेगा, अगेन नॉट पॉसिबल। अगर ए हमारा 3 हुआ 9 हो जाएगा, और ये हमारा 4 होना पड़ेगा, दैट इज पॉसिबल। सो वी कैन हैव अ ट्रिपल 3 एंड 4। एक तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल 3 और 4 हो सकता है। और
यस, वी कैन ऑल्सो हैव वन केस जब हम ए को फॉर एग्जाम्पल 4 रखें तो 4 3 12 और ये बी हमारा 1, तो इसका मतलब 444 और हमारा 1 भी डेफिनेटली बन कर सकता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास मनु में दो पॉसिबिलिटी है, 1444 भी हो सकता है और वी कैन हैव अ 333 एंड अ 4। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों में भी डिसाइड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ नंबर्स का गेम है, चेक करना है कि बाकी लोग का सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक अबाउट दिस, ये देखो ये वाला केस, इसी केस में 13 अगर मान लो इससे बन रहा है, 1444 से फॉर एग्जाम्पल बन रहा है, तो अगर यहां 1444 है तो वैभव का मेरे को 14 क्या बनते हुए दिखेगा, थिंक, क्योंकि 5 हम यहां पे यूज कर नहीं सकते। और नोटिस करो मनु में अगर मैं 1444 डाल दे रहा हूं तो जिस जिस गेम में उसको 444 मिला होगा उन सारे गेम्स में वैभव को 4 नहीं मिल सकता, 5 मिलना नहीं है। तो उन तीनों गेम्स में जिसमें मनु को 4 मिला होगा, वैभव उन गेम्स में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है, 3 मैक्सिमम 3 स्कोर कर सकता है, मैक्सिमम। राइट, तो जो लास्ट वाला गेम होगा, बिकॉज इसको 14 बनाना है तो 3 इंटू 3 9 बनेगा। 14 में पहुंचने के लिए उसको एक गेम में 5 स्कोर करना पड़ेगा ना। अगेन रिपीट, मनु का ये जो 13 है अगर 444 1 से बना है तो वैभव में बिकॉज 5 आ नहीं सकता और उसको 14 बनाना है, तो जिस भी गेम में मनु का 4 आया है उन गेम्स में मैक्सिमम वैभव कितना रैंक ले सकता है, 333, बिकॉज ही कैन नॉट हैव अ 4, क्योंकि कॉलम में रेपिटेशन होना नहीं है, 5 हो नहीं सकता, मना कर रखा है। तो उन गेम्स में, उन तीनों गेम में मैक्सिमम हमारा वैभव कितना स्कोर कर सकता है, 333 रैंक। बट अगर 333 मैक्सिमम भी स्कोर करा तो 3 गेम्स मिला के उसको 9 मिलेगा ना सम ऑफ रैंक्स, 14 उसका पहुंचना है, मतलब उसको एक गेम में 5 चाहिए होगा। बट वैभव में कभी भी 5 नहीं आ सकता। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि मनु का अगर ये वाला 13 वाला केस बनना है तो उसमें 4441 वाली पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर ये बनना है तो 333 एंड 4 से ही डेफिनेटली बनेगा। राइट, 333 4 से बनेगा। एंड अब वापस से हम वैभव का देखते हैं, वैभव का बनना है कि नहीं बनना। तो अगर मैं 333 4 दे रहा हूं लेट से मनु को किसी भी ऑर्डर में इन चारों गेम्स में, तो फिर वैभव का हमारा 14 कैसे बनेगा। सो लेट्स थिंक, अब जैसे 14 मेरे को बनाना है ना, डेफिनेटली कुछ नंबर्स तो बड़े आने चाहिए ना। जैसे जिस भी गेम में मनु 3 स्कोर कर रहा होगा, वैभव 1 कर सकता है, मे बी 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, बट 5 नहीं कर सकता। बट स्टिल यू हैव टू मेक 14। तो नोटिस करोगे तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी, आई कैन डू अ 4 4 4 लेट से, क्योंकि 5 5 5 तो वैसे भी नहीं हो सकता। 4 4 4 अगर मैं देता हूँ, 4 3 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, दैट इज डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी। कैन आई हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसे अगर इन 4 में से किसी को भी तुमने कम करा तो ये डायरेक्टली हमारा किस पे जाएगा। जैसे 4 को तुम 3 तो बना नहीं सकते, इन तीनों में 4 को तुम 3 नहीं बना सकते, तो अगर कम करोगे तो वे डायरेक्टली 2 के लेके जाना पड़ेगा। बट अगर किसी भी 4 को तुमने 2 बनाया तो 2 से कम कर रहे हो ना, तो फिर इस 2 को तुम्हें 2 से बढ़ाना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा, बट फिर वो 4 चला जाएगा। बट इस राउंड में वापस से इसका 4 नहीं आ सकता। तो इफ यू डू अ सिंपल बिट ऑफ हिडन ट्रायल इन दिस, यू विल डेफिनेटली गेट दिस पॉसिबिलिटी कि फिर हमारा वैभव के जो करस्पॉन्डिंग 4 गेम होंगे, मनु के करस्पॉन्डिंग 4 गेम के हिसाब से, फिर उसमें उसको क्या मिलेगा, 444 एंड 2 ही डेफिनेटली मिलेगा। राइट, एक तो ये अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैंने बोला था मनु, वैभव एंड अनुराग के अराउंड ही हम मैक्सिमम पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो अब नोटिस करो, 333 4 444 एंड 2 हमारे पास बना हुआ है। तो अब अगर मैं अनुराग की पॉसिबिलिटी देखना स्टार्ट करूं यहां से, ठीक है, अब अनुराग का बिकॉज मेरे को 10 भी तो बनाना है, तो अब अनुराग का 10 कैसे बनेगा। अब नोटिस करो, जैसे 4 तो मैं कभी भी यूज वैसे भी नहीं कर सकता, 4 इज डन। अनुराग में 2 हमारा यूज होना नहीं है, राइट, अनुराग में डेफिनेटली मेरा 2 तो यूज होना ही नहीं है। तो अब मेरा 10 कैसे बन सकता है, 4 नंबर से अगर मेरे को 10 बनाना है, सो आई कैन नॉट यूज अ 2 ऑल्सो, बिकॉज इसमें मेरा क्या आ चुका है, 3 टाइम्स 3 आ चुका है ना। तो मैं इसमें 3, मतलब मैक्सिमम एक जगह अब 3 डाल सकता हूं, क्योंकि इस वाले पर्सन में जो भी मनु था उसमें 3 बार 3 आ चुका था। तो मैक्सिमम मैं अनुराग को किसी एक राउंड में अब 3 दे सकता हूं, तो 3 मेरा मैक्स एक बार आ सकता है। ऑल्सो नीतीश एंड शशांक को क्रिकेट एंड पोकर में 1 1 मिला हुआ है, तो अनुराग को इन दोनों स्पोर्ट में 1 मिल नहीं सकता, 2 नहीं मिल सकता।
राइट, क्योंकि 2 देना नहीं है, सो मेरे को कम से कम दोनों में 3 रखना पड़ेगा, और 3 मेरा मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है। तो जैसे ये दोनों में से किसी एक में मिनिमम मेरे को, मान लो एक बार अगर मैंने 3 रखा, तो दूसरे वाले में फिर कम से कम मेरे को 4 रखना पड़ेगा। राइट, 3 and 4, दैट इज डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी। अच्छा, और क्या बचेगा? 4 3 7 आ गया, 3 और मेरा बचा हुआ है। 10 - 7 is 3। अब 3 कैसे बनाएंगे? आई कैन डू अ 1, बट फिर दूसरे में 2 चाहिए होगा, तो 1 and 2 से ही हमारा 3 ब्रेक हो सकता था, मतलब 3 and 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे आप इस 4 को फिर इंक्रीज करो। राइट, इस 4 को क्या करो? इंक्रीज करो। सो आई कैन डू अ 3 and 5 फॉर एग्जाम्पल। 3 5 8, और बाकी दोनों राउंड्स में 1 and 1। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी यू कैन इवेंचुअली गेट। इसके अलावा और कोई हमारा अनुराग का 10 बनाने का तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो डबल वन, आई कैन हैव अ डबल वन। ठीक है, सो पूल एंड डीटे में डबल वन आ जाएगा, और यहाँ क्रिकेट एंड पोकर में किसी भी ऑर्डर में राइट नाउ आई कैन हैव अ 3 and 5। 3 and 5 आएगा, परफेक्ट। नाउ दिस इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये हो जाएगा, देखो नोटिस करो कि अनुराग के रो में 2 1 यहां आ गए, नीतीश एंड शशांक ने बाकी दोनों स्पोर्ट्स में 1 ले लिए। सो अब हमारे पास जैसे शशांक एंड नीतीश का जो भी अब अपना स्कोर बैलेंस करना है, बनाना है, उनमें 1 कभी भी यूज नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। ऑल्सो नोटिस करो कि मनु में 3 3 था, और एक 3 हमने अनुराग में दे दिया, तो 3 भी अब यूज नहीं हो सकता। ऑल्सो वैभव में 3 4 थे, एक हमारा मनु में 4 था, तो अब हमारा 4 भी यूज नहीं हो सकता। तो शशांक एंड नीतीश का जो भी मेरे को स्कोर बनाना है, वो 2 and 5 के कॉम्बिनेशन से ही अब बनाना पड़ेगा। राइट, उन्हीं से कॉम्बिनेशन से बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी को भी देख लो, फॉर एग्जाम्पल नीतीश को अगर देखो, इसका अब 12 बनाना है, और 2 and 5 से बनना चाहिए, बिकॉज बाकी अब नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब 12 में से ये गया हमारा 1, तो इन 3 जगह हमारे पास क्या बचेगा? 11 बचेगा। राइट, इन 3 नंबर से 11 बनना है, और हम यूज कर सकते हैं सिर्फ 2 या फिर 5। तो 3 नंबर का एडिशन मेरे को 11 बनाना है, एंड नाउ आई कैन ओनली यूज आइदर 2 और 5। तो क्या मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा? नो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 5 यूज करता हूं, तो मेरे को 1 चाहिए होगा, नॉट पॉसिबल। एक 5 यूज करता हूं, तो मेरे को 6 चाहिए होगा 2 नंबर से, अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये पूरा ही केस आगे जाके हमारा क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट हो जा रहा है। सो व्हाट डज दिस इवेंचुअली मीन? ये मेरे को फाइनली ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी पहली वाली पॉसिबिलिटी है ना, दिस इज एंटायरली रॉन्ग, दिस कैन नॉट हैपन। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, कि इनके जो सम ऑफ रैंक्स है वो हमारे 8 10 12 14 एंड 16 ही आएंगे ना। नोटिस करो, वैभव हमारा सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि वैभव में हमारे पास 16 बनना है 4 नंबर से, आई कैन नॉट यूज अ 5। तो मैक्सिमम ही हर जगह देना पड़ेगा, दैट इज 4 4 4 and 4, और कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती नहीं। व्हाट अबाउट मनु? मनु में हमारा, मैं याद रखना, 14 बनाना है। अब 2 ही नंबर यूज करने थे, और मेरे को इवेंचुअली क्या बनाना है? 14 बनाना है। तो 14 को बनाने के तुम्हारे पास क्या तरीके आएंगे? ना इसमें जैसे नोटिस करो, 14 बनाने के हमारे पास, जैसे अगर ये डबल ए डबल बी वाला पॉसिबिलिटी है, तो 2 times a + b विल बी इक्वल टू 14। तो इसका मतलब a + b विल बी इक्वल टू 7। अब 7 बनाने का क्या तरीका है? ए और बी को क्या रख सकते हो? 1 और 6 तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि 6 अवेलेबल नहीं है। आई कैन डू अ 2 and 5। आई कैन डू अ 2 and 5। आई कैन नॉट डू अ 3 या 4, बिकॉज 4 हमारा चारों गेम्स का ऑलरेडी आ चुका है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मनु में आई कैन नाउ थिंक ऑफ आइदर अ डबल 2 डबल 5, या फिर अगर ये वाला केस है, मान लो ट्रिपल a b वाला, तो 3a + b विल बी इक्वल टू 14। इसमें अगर हिट ट्रायल करना स्टार्ट करो, a 1 नहीं हो सकता, बिकॉज b फिर 11 आ जाएगा। 2 नहीं हो सकता, क्योंकि b 8 आ जाएगा। अगर ये 3 हुआ 9, तो b हमारा 5 आ जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ ट्रिपल 3 and 5, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी कैन नाउ हैव। राइट, यही हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, हमारा थॉट प्रोसेस क्या था अगला? पिछले वाले केस में हमने अनुराग के करस्पॉन्डिंग सोचा था ना। अनुराग का आप नोटिस करो, मेरे को क्या बनाना है? 8 बनाना है। ठीक है, अनुराग का मेरे को क्या बनाना है? 8 बनाना है। 4 नंबर से मेरे को 8 बनाना है। तो 8 बनाने की क्या पॉसिबिलिटी है? इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज, देखो, अनुराग के केस में अगर मैं नोटिस करूं, लाइक मैक्सिमम तुम 2 राउंड में 1 दे सकते हो ना,
क्योंकि छोटा स्कोर है, सो आई विल बी थिंकिंग अराउंड अ स्मॉलर नंबर। टू इसमें आ नहीं सकता, सो इसमें हम वन दे सकते हैं, बट हम क्रिकेट एंड पोकर में वन नहीं दे सकते। तो अगर क्रिकेट एंड पोकर में वन नहीं दे सकते, तो एक जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही थी, आई कुड हैव डन अ ट्रिपल वन फाइव, ये चीज तो पॉसिबल नहीं होगा। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी तुरंत से क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। आई कैन नॉट डू अ ट्रिपल वन फाइव। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो फोर यूज वैसे भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज अ डबल वन डबल थ्री में भी। एक तो ये तरीका हमारे पास निकल के आएगा, डबल वन डबल थ्री, ठीक है। क्योंकि देखो आइडिया ये है कि ट्रिपल वन फाइव मैंने करा, फाइव से मैं फोर नहीं जा सकता बिकॉज फोर अवेलेबल नहीं है। तो फाइव को अगर मैं कम करने वाला हूं, ठीक है, फाइव को अगर मैं कम करने वाला हूं, तो ये डायरेक्टली मेरा जंप लेके थ्री पे आएगा, राइट। तो अगर ये थ्री पे आएगा, दो कम हुआ, तो इन तीन वन में से कोई एक दो बढ़ेगा भी, तो इसीलिए हमारे पास एक और थ्री मिला। सो आई हैव अ डबल वन डबल, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई कैन थिंक ऑफ फॉर अनुराग। तो अनुराग में डबल वन डबल थ्री है ना, इसका डबल वन डबल थ्री अरेंज भी एक्चुअली में हो जाएगा, बिकॉज क्रिकेट एंड पोकर में इसको वन वन मिल नहीं सकता, तो यहां पे इसको थ्री थ्री मिलेगा, और बाकी दोनों जगह पे क्या मिलेगा, वन एंड वन। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली डन, वन वन थ्री एंड थ्री। ठीक है, दिस लुक्स डेफिनेटली परफेक्ट। तो अब इसके बेस पे मैं मनु का भी एक्चुअली मैं रैंक ब्रेक कर सकता हूं कि कौन सा केस रहेगा, बिकॉज अनुराग में दो बार थ्री आया ना, तो मनु में तीन बार थ्री नहीं आ सकता, राइट। टोटल काउंट थ्री का चार ही रहेगा ना, चार गेम्स में, तो ये नहीं होगा। सो मनु का हमारा डबल टू एंड डबल फाइव ही डेफिनेटली इसमें आने वाला है। बट हम ऑर्डर तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल हम, बट इसमें हाँ डबल टू एंड डबल फाइव आ गया, नाइस। नेक्स्ट डबल टू डबल फाइव हमारा मनु में आ गया। उसके बाद हम किसका सोच लें, मे बी नीतीश का सोच लो। तो नीतीश का क्या है, अब जैसे 12 - 1, तीन नंबर से मेरे को कितना बनाना है, 11 बनाना है। तो हम क्या क्या नंबर यूज कर सकते हैं, पहले तो हम वन यूज नहीं कर सकते क्योंकि चार बार वन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, सो आई कैन नॉट यूज अ वन, आई कैन नॉट यूज अ फोर। सो वन यूज नहीं हो सकता और हमारा फोर यूज नहीं हो सकता। तो इसके अलावा हमारा फिर कैसे बनेगा नीतीश का 12, लेट्स थिंक। टू हमारा अभी भी यूज तो हो ही सकता है, राइट। टू हमारा डेफिनेटली यूज हो सकता है। अ, क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास नीतीश के लिए, चलो वन यूज नहीं कर सकते, नीतीश में अपन टू तो यूज कर ही सकते हैं। और टू हमारा अभी तक दो ही बार यूज हुआ है ना यहाँ पे। तो इसमें मान लो अगर हम एक टू यूज करते हैं, सपोज एक टू यूज करा, ठीक है, या सपोज पहले दो टू यूज करके चेक कर लेते हैं। अगर दो टू यूज किया तो फोर बन गया, बट यहाँ पे फिर सेवन चाहिए होगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दो टू तो डेफिनेटली यूज नहीं हो सकता। क्या एक टू यूज हो सकता है, अगर एक टू यूज हुआ तो हमारा नाइन बचेगा इसमें बनना, फोर यूज हो नहीं सकता। तो नाइन हम कैसे बना पाएंगे जब हम फोर यूज नहीं कर रहे, तो क्योंकि एक ही तरीका बचता था फोर एंड फाइव का, बट फोर अवेलेबल ही नहीं है, सो आई कैन नॉट यूज ऑफ टू। तो ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि इसमें हमारा टू भी यूज नहीं होना है, गुड। सो वन टू एंड फोर तीनों नंबर यूज नहीं हो सकते, तो सिर्फ हमारा क्या बचा, थ्री एंड फाइव। तो एक ही पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी अगर 11 बनाना है, दैट इज अ डबल थ्री एंड फाइव, नाइस। तो नीतीश में हमारा डबल थ्री एंड फाइव अभी हमारा एलोकेट होना बाकी है। तो नोटिस करो, इसमें इसको थ्री नहीं मिल सकता, इसमें इसको फाइव मिलेगा, राइट। राइट, इसमें फाइव मिलेगा, तो बाकी दोनों जगह इसको कितना मिलेगा, थ्री एंड, राइट। ये भी हमारा ब्रेक हो गया। एंड पोकर में फिर आपका फाइनली यहाँ का नंबर ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज पोकर में फिर आपका, बिकॉज सारे रैंक्स दिखने चाहिए थे, तो वन टू इज एक्चुअली मिसिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इन तीन जगह पे अभी भी टू एंड डबल फाइव जाना बाकी है। एंड इवेंचुअली अब मैं शशांक का भी बोल सकता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली बनना है, बस आप नंबर्स की भी काउंटिंग एक्चुअली में कर सकते हो, राइट। जैसे वन हमारा हो चुका है यूज, चार बार वन। टू अगर मैं नोटिस करूँ तो एक बार यहाँ टू आया है, एक बार अभी हमारा टू इसमें और आना बाकी है, तो दो टू है। तो शशांक में डेफिनेटली मेरे दो टू और आएंगे। थ्री हमारा एक दो तीन चार यूज हो चुका है, फोर यूज हो चुका है। फाइव एक दो तीन बार यूज हो चुका है, तो एक बार और फाइव बाकी है। तो शशांक में यही नंबर रिमेनिंग है। और नोटिस करो बिल्कुल बैलेंस भी है, बिकॉज वन है, आई नीडेड अ नाइन, सो वो फाइव डबल टू से ही आएगा, दैट्स इट।
राइट, डेफिनेटली अ डिफिकल्ट वन। इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज अपने को एक्सप्लोर करनी है। लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। फॉर हाउ मेनी फ्रेंड्स द एग्जैक्ट रैंक ऑफ ईच ऑफ द फोर गेम्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो कितने फ्रेंड्स के लिए चारों गेम्स का यूनिक बता सकते हो? तो सिर्फ 3 लोग के लिए हम यूनिकली बता सकते हैं। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज 3। सेकंड, इफ शशांक रैंक इन पूल इज 5, शशांक का अगर पूल में 5 आया, यहाँ पे अगर 5 आ गया, बाकी दोनों जगह 2 आएगा, देन व्हाट इज मनूज रैंक इन टेबल टेनिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा। तो मनु का टेबल टेनिस में बताना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। 5। व्हाट इज अनुराग रैंक इन क्रिकेट। अनुराग का क्रिकेट में आई हैव अ यूनिक रैंक, दैट इज 3। एंड फाइनली इफ मनूज रैंक इन पूल इज 5, तो मनु का अगर पूल में 5 है, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। दैट वाज ओनली फॉर द प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। सो इफ मनूज रैंक इन पूल इज 5, तो मनु का अगर यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, मनूज रैंक इन पूल इज 5, देन व्हाट इज हिज रैंक इन क्रिकेट। मनु का हम रैंक इन क्रिकेट वैसे भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा 5 ही तो यूज हुआ। आई स्टिल हैव 2 पॉसिबिलिटी, दैट इज 2 या फिर 5 आ सकता है यहाँ पे। सो दिस आंसर, द फोर्थ प्रॉब्लम, द आंसर हैज टू बी कैनॉट बी डिटरमिन्ड। Right, so I hope you understood this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.